Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic of English grammar, that is clauses. After this lesson, after this video, you will be able to know the difference between phrase, clause and the sentence. You will be able to know the difference between main clause and a subordinate clause. First of all, we are going to discuss what is this? What is this? What are you looking? This is a letter. This is B. This is a letter. Does it have any meaning? I think no. This letter is just a symbol which indicates the letter B in English. What is this? This is also a letter T. Does it have any meaning? No. But if a group of letters are there, what do you mean by a group of letters? A group of letters is known as a word. For example, look at this strip K, B, O, O. This is a group of letters. Is it a word? No, I think no. Because why? Because it has no meaning. Kaboo. What is kaboo? Meaningless group of letters. To make it meaningful, arrange it like this. B-O-O-K. If I say book, what do you understand? Yes, आपको पता चला कि मैं एक बुक की बात कर रहा हूं. जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला, आपके दिमाग में एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट, एक बुक जो आपके बैग में होती है, उस पर आपका दिमाग गया और आपने इसको सोचा कि ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, इसका कोई ना कोई मीनिंग है. इस प्रकार से a group of letters is known as a word which has a sense, a complete sense, a meaning. Next is, if I take some examples, for example, read these group of words. What is this? On the table. Does it have a meaning? No. It has no meaning. What is this? On is a preposition, article and a noun. It has no verb, and without verb we can't make a sentence, we can't frame a sentence. Next is in the kitchen. What is this? This is a group of word. This is also a group of word. Is it a sentence? Is it a clause? Not at all. This is just a phrase. What is a phrase? Phrase is a group of words which have a little sense, not complete. And a phrase has no verb or subject. Next is, now let us take one more thing. What is this? If you tell me a story, what is this? Is it a phrase? No, it is not a phrase. Why? Because there is a verb, tell, subject, you, me, a story, object. In this way, there are two objects. This is a direct object and this is me is indirect object. But what is this? Is it a phrase? No, it is not a phrase. Is it a clause? Yes, it is a clause. What is the definition of clause? हम ये सीखेंगे आज. It has a sense but not complete sense. It needs another clause to complete its sense. Now, what does it need? Now, look at the next strip. Look at this strip. If you tell me a story, I shall give you a prize. Now it becomes a sentence. Is it right? No. We have to mark a comma between these two clauses. These are two clauses. If you tell me a story, I shall give you a prize. Now, there is a comma between them because ये जो sentence, ये जो clause है, ये clause है subordinate clause. Subordinate clause क्या होता है? आप पढ़िए इसको. If you tell me a story, इसका क्या मीनिंग निकलता है? क्या आपको नहीं लगता कि केवल ये वाला क्लोज पढ़ने से हमें कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चलता?
नहीं चलता ना। क्यों? क्योंकि इसे अपना मीनिंग लेने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होना होगा। एक और क्लॉज चाहिए ताकि वो सेंटेंस बनकर उसका मीनिंग कंप्लीट कर सके। आइए ये दूसरा क्लॉज हम ले आए। ये जो दूसरा क्लॉज है, आई शैल गिव यू अ प्राइज, अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, केवल ये मैं आपको दिखाऊं, आई शैल गिव यू अ प्राइज, क्या मीनिंग है इसका? यस, इट इज मीनिंगफुल, इट इज क्वाइट मीनिंगफुल, इट हैज ए कंप्लीट सेंस, इट नीड्स नो अदर क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग और सेंस, बट it is a sentence as well as it is a clause. Clause, which type of clause it is? It is a main clause and as well as a sentence. Now, if I add a subordinate clause before it and put a comma before them, between them, then it becomes a complete sentence having two clauses. If you tell me a story, I shall give you a prize. एक बात और मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, ओ द स्ट्रिप ऑफ कोमा हैज फॉलन डाउन, नो इश्यू, हाउ कैन आई मेक इट राइट नाउ? लाइक दिस, आई शैल गिव यू ए प्राइज इफ यू टेल मी ए स्टोरी। कोई बात नहीं, अगर वो गिर गया तो क्या हुआ? हम मेन क्लोज को पहले लिख देंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज को बाद में लिख देंगे। नाउ वी नीड नो कोमा बिकॉज देयर इज ए कंजंक्शन इफ between these two clauses and now it becomes a complete sentence. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वर्ड, what is a word? A group of letters and has its meaning. What is a phrase? A group of words having no meaning, having a little sense. What is a clause? A clause has either a complete meaning, may or may not have a complete meaning, you can say. It has two types, subordinate clause and main clause. And the next one is sentence. Sentence is a group of words having a complete sense, is known as a sentence. It may have a single clause, it may have two clauses, it may have more than two clauses. आइए अब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जहां तक फ्रेज की बात है, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, जिसकी सेंस अ लिटिल सेंस होती है, हम कुछ समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, इन द पार्क, व्हाट इज इन द पार्क? अगर आपको कोई केवल बाहर से कोई आदमी आए और आपको कहे इन द पार्क, व्हाट डज इट मीन? आप पूछेंगे क्या है पार्क में? दिस इज ए फ्रेज। In a phrase there is no verb, verb नहीं होता, subject भी नहीं होता। In the park, an interesting movie, what does it mean? It is just a phrase, it is a group of words having a little sense of wealth, a group of words having a little sense. Wearing a blue coat, this is also a group of words having a little sense. But if we add a subject and a verb before these phrases, we can frame sentences. हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी फ्रेज से पहले कोई वर्ब या सब्जेक्ट ऐड कर दें तो वो एक सेंटेंस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आइए हमारे पास ये एक फ्रेज था, ऑन द टेबल, इन द किचन। हम कुछ सब्जेक्ट और वर्ब यहां ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक सब्जेक्ट इज वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये बन गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। शी इज इन द किचन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से एक फ्रेज को अगर हम उसमें वर्ब या सब्जेक्ट ऐड कर दें तो वो एक सेंटेंस बन सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा, आई मेट हिम इन द पार्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या ऐड किया? आई सब्जेक्ट, मेट हिम इन द पार्क। इन द पार्क फ्रेज था।
आई मेट हिम मैंने और ऐड कर दिया इसमें, जो कि एक सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन है। ये बन गया हमारा एक क्लॉज, आई मेट हिम इन द पार्क। क्या ये सेंटेंस भी है? ऑफ कोर्स ये सेंटेंस भी है, बिकॉज इट हैज कंप्लीट सेंस। आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग मूवी, इज इट ए क्लॉज? ऑफ कोर्स इट इज ए मेन क्लॉज। ये दोनों सेंटेंस मेन क्लॉज भी हैं, और मेन क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्लॉज है। आप कैसे पहचान करेंगे कि एक क्लॉज है? इट्स वेरी सिंपल। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काउंट कर लीजिए। देखिए, आई मेट हिम इन द पार्क, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? 1 आई। हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर? 1 मेट। एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग मूवी। आई सब्जेक्ट है, वॉच्ड वर्ब है। 1 सब्जेक्ट, 1 वर्ब, फाइनाइट वर्ब, 1 सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और मेन क्लॉज। इट कैन बिकम द मेन क्लॉज ऑफ ए सेंटेंस। नेक्स्ट इज द बॉय। यहां पर हमने एक फ्रेज लिखा था, वेयरिंग ए ब्लू कोट। इसी को हम सेंटेंस में चेंज करके देखते हैं, या एक मेन क्लॉज में चेंज करके देखते हैं। द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू कोट, व्हाट इज दिस? डज इट हैव ए सेंस? द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू कोट। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई भी अभी बाहर से कोई आता है और आके कहता है, द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू कोट। क्या समझे आप? डज इट हैव कंप्लीट सेंस? नो, it has not complete sense. To make the complete sense of this clause, we have to add something in it. This is a clause. तो फिर इस क्लॉज में इस क्लॉज में क्या फर्क है? वेरी सिंपल। क्लॉज क्यों है? क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एंड इज वेयरिंग ए ब्लू कोट एक वर्ब है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो क्लॉज तो हुआ, लेकिन सेंटेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इट हैज नो कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट इज ऑल्दो शी वॉज हंग्री। यस, शी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। क्या है? क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जिस क्लॉज में एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। उसका मीनिंग कंप्लीट सेंस लिए हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो वो मेन क्लॉज है, या यूं कहिए सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं निकलता, कंप्लीट मीनिंग के लिए उसे किसी मेन क्लॉज पर डिपेंड करना पड़ेगा, उसे हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू कोट, जिसकी हम बात कर रहे थे, द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू कोट इज माई सन। वो कौन है? मेरा सन है, मेरा बेटा है। यहां देखिए, द बॉय सब्जेक्ट है, इज वेयरिंग वर्ब है, ए ब्लू कोट, फिर ये यहां से लेकर ये एक सब्जेक्ट बना हमारा, द बॉय इज माई सन। कौन सा बॉय? हु इज वेयरिंग ए ब्लू कोट। ये फिर से हमारी वर्ब है, और ये पूरा का पूरा फिर से सब्जेक्ट है। तो यहां पर एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये बन गया एक सेंटेंस। आगे देखिए, ऑल्दो शी वॉज हंग्री, कोमा, ऑल्दो शी वॉज हंग्री सबऑर्डिनेट क्लॉज है। To make it its complete sense, we have to add a main clause to it. Now by adding, she gave her food to the beggar. हालांकि वो हंग्री थी, भूखी थी, फिर भी उसने अपना सारा भोजन बेगर को दे दिया, भिखारी को दे दिया। अगर हम केवल इस क्लॉज को छोड़ दें और केवल इस नीचे वाले क्लॉज को पढ़ें, she gave her food to the beggar, it is a complete sentence. It has a complete sense. But if it becomes the part of a longer sentence, then it is said to be the main clause of that sentence.
आइए अब हमने कुछ एग्जाम्पल से फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बीच के डिफरेंस को देखा और ये पाया कि व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वेरी सिंपल. नेक्स्ट, क्लॉज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से तो पता नहीं चलेगा कि ये फ्रेज है, क्लोज है या सेंटेंस है, क्योंकि तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं. सेकंड, नो फाइनाइट वर्ब, देयर इज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ फ्रेज, बट देयर इज ए सब्जेक्ट and a finite verb combination or a subject and a predicate in case of a clause. And in case of a sentence, there is also a subject and predicate or a subject verb combination in case of sentence. Now, यहां से फ्रेज और क्लोज में तो डिफरेंस क्लियर है, लेकिन क्लोज और सेंटेंस में डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ. क्यों? यहां भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब कॉम्बिनेशन, यहां भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब कॉम्बिनेशन. इसको कैसे समझेंगे? यदि ये मेन क्लोज है तो ये खुद एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है, तो उसमें और इस सिंपल सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा. लेकिन अगर इसका कंप्लीट सेंस नहीं है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. इसका यदि कंप्लीट सेंस है तो ये सेंटेंस है. जब तक कंप्लीट सेंस किसी क्लॉज की नहीं होगी, इट कैन नॉट बी सेड टू बी ए सेंटेंस. आगे देखिए, ए फ्रेज हैज नो कंप्लीट सेंस. ए क्लॉज मे और मे नॉट हैव ए कंप्लीट सेंस. इफ इट हैज ए कंप्लीट सेंस, इट इज द मेन क्लॉज और ए सिंपल सेंटेंस. इफ हैज नो कंप्लीट सेंस, it is a subordinate or dependent clause. And a sentence has always a complete sense. And the last one is part of a sentence. Phrase is the part of a sentence. Clause may or may not be a part of a sentence. If it is a main clause, it is a sentence itself. And a main clause as well as a subordinate clause, both the clauses can become the parts of a sentence. But in case of a sentence, it is totally independent. It has a complete sense. It does not depend on other clauses for its meaning or for its sense. Dear students, we have learnt the concept of clauses, difference between a phrase and a clause, and the difference between the main clause and a subordinate clause. We are going to discuss the difference between the main clause and a subordinate clause and the types of subordinate clauses. What is the difference between a main clause and a subordinate clause? As you know, a clause has a subject of its own and a finite verb of its own, a subject-verb combination or a subject and predicate combination. A principal clause has at least one subject and one finite verb, or you can say subject and predicate with a complete sense, with a complete meaning. Independent clause या main clause को अपने meaning के लिए किसी दूसरे clause पर depend करना नहीं पड़ता, जबकि in case of a subordinate or dependent clause, we have at least one subject and one finite verb, or you can say subject and predicate combination. This thing is similar, is same in both the types of clauses. But what is the difference between a main clause and a subordinate clause is its meaning. A subordinate clause has no complete sense, while a principal clause has. A subordinate clause has to depend on the main clause for its complete meaning. This is the basic difference between a main clause and a subordinate clause. Now, both the clauses have subject-verb combinations, but main clause has a complete sense, while the subordinate clause has not a complete sense. Now, a main clause can also be known as a simple sentence.
मेन क्लॉज एक अलग से सिंपल सेंटेंस बना सकता है, लेकिन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस नहीं बना सकता, क्योंकि इसका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। इसे अपने मीनिंग को दर्शाने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करना पड़ता है। जिस प्रकार से अगर हम अपने घर से इसका एग्जाम्पल लें, आप सभी बच्चे, आपके हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली? योर फादर, योर ग्रैंडफादर, मे बी। नाउ all the decisions are taken by the head of the family, not by you, because he is the main person of your family. He is the principal person of your family and he is independent. But you are subordinate. You have no power to take the decisions. You have to depend on the main head of the family, means on your father, on your mother, on your grandfather, parents, etc. It means this is the main difference between a main clause and a subordinate clause. Now, a subordinate clause is basically of three types. First is a noun clause, second is an adjective clause, and the third one is an adverb clause. You have learnt the concept of nouns, adjectives, and adverbs already. Now, what is a noun? Noun is name of a person, place, thing, animals, etc. is known as a noun. Noun can act as a subject or an object in a sentence. In case of adjective, what is adjective? Adjective tells us something about the subject or object, noun or pronoun. And what is adverb? Adverb tells us how, manner, time, place, contrast, etc. In the same way, a clause is there. अगर हम इसमें noun की definition जानते हैं और clause की definition अभी अभी हमने सीखी है। clause की definition है कि one subject और वन फाइनाइट वर्ब हो जिसमें। नाउन अभी हमने सीखा है नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एटसेट्रा। इट मीन्स अगर कोई क्लॉज किसी सेंटेंस में नाउन के स्थान पर काम करे या नाउन की तरह से एक्ट करे, उस क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कहते हैं। अगर कोई क्लॉज की डेफिनेशन हम पहले से जानते हैं, किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, या ये कहें कि वो अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी क्वालिटी में कुछ ऐड करे, उसकी क्वालिटी बताए, तो उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में कोई क्लॉज मींस ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, अगर कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन उस सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे, हो सकता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करे, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करे, एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करे, एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पस, कंडीशन, इफेक्ट, रिजल्ट, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, एटसेट्रा, किसी भी तरीके का वो काम कर सकता है। तो एक एडवर्ब क्लोज होने के लिए सबसे पहली शर्त क्लोज होना चाहिए, और क्लोज होने की पहली शर्त सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एडवर्ब का काम करता है तो वो एडवर्ब क्लोज है। अगर कोई क्लॉज मींस सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसी नाउन का काम करे किसी सेंटेंस में, तो उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। और अगर कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। आइए उस एग्जांपल से हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है नाउन क्लॉज हमें बताता है व्हाट, दैट, हाउ, या यूं कहिए नाउन क्लॉज को आप समथिंग से रिप्लेस करके देख सकते हैं। इफ यू कैन रिप्लेस ए नाउन क्लॉज बाय समथिंग, then you can say that it is acting as a noun clause. For example, आइए हम 3 sentences लेते हैं। I thought a plan. What is this? A plan. This is a noun.
This is just a noun. I thought to win a prize. What is this, to win a prize? This is a phrase. I thought something. What? I thought what? To win a prize. And this to win a prize is a group of words that has a little sense. It is a noun phrase. And I thought that I shall win a prize. I thought, subject, verb. एक क्लोज है. That I shall win. Again, subject and shall win, verb. Subject verb combination, subject verb combination. Now it is not a phrase, it is a clause. And this clause is acting as a noun in this sentence. I thought something. We can replace this clause with something. It means it is a noun clause. Next type, adjective clause. Adjective clause tells us where, who, or which, etc. Usually, he is wearing a coat. He is wearing a coat. What is he wearing? He is wearing a coat. Next is, he is wearing a blue coat. What is a blue? This is an adjective for coat. Coat is a noun. Next is, he is wearing a coat which is black or blue. Again, which is black, this is a phrase which tells something about the coat, and coat is a noun. So it is an adjective phrase. And the next is, the man who is wearing a black coat is my friend. Where is the main clause? The man is my friend. This is the main clause. The man is my friend. But who is wearing a black coat? This is a subordinate clause because it has no complete sense of its own. It depends on the main clause, the man is my friend, for its meaning. Now, who is wearing? Again, subject, verb combination. Who subject is wearing, verb. And the man subject is my friend, again verb. The man is my friend is the principal clause in this sentence, and who is wearing a black coat is the subordinate clause which is acting as an adjective clause. क्यों? क्योंकि ये who is wearing a coat, a black coat, qualifies the subject, the man. ये इसके लिए यूज किया गया है. ये इस man के बारे में आगे कुछ बताता है, इसलिए ये adjective clause हुआ इस the man subject के लिए. And the next is adverb clause. Adverb clause always tells us a clause that tells us where, when, and how of a clause in a sentence. Now, let us take some examples. First of all, what he said made me laugh means कैसा clause है? What he said, this is the subordinate clause. Something made me laugh. इसको हम something से replace कर सकते हैं. तो यहां पर ये noun clause because what he said, subject verb combination. Made me, this made, ये subject हुआ इस main clause का, made यहां की verb हुई. तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम main clause को, इस subordinate clause को अगर हम noun से replace कर सकते हैं तो ये noun clause है. Something made me laugh. A joker made me laugh. The joke made me laugh. In this way, we can replace it with a noun. So this is a noun clause. Can you tell me how this is done? Can you tell me something? Can you tell me this? Noun. This is again a noun clause as an object in this sentence. Now, he fears that he will fail. He fears something. He fears what? He fears that he will fail. उसे डर है कि वह फेल हो जाएगा. उसे किसी न किसी बात का डर है, किसी न किसी चीज का डर है, किसी नाउन का डर है. मतलब life is what we make it. Life is something. Life is what? What we make it. जीवन वही है जो हम बनाते हैं. जैसे इस प्रकार से ये हमारे पास हुए नाउन क्लॉजेस के एग्जांपल्स. इसमें जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं
वो नाउन क्लॉज के एग्जांपल्स हैं। आइए अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। रीड दिस सेंटेंस, ही इज ए स्टूडेंट हु इज लेजी। यहां पर ही इज ए स्टूडेंट मेन क्लॉज है, हु इज लेजी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये हु इज लेजी, कौन है लेजी? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? नाउन। नाउन की जो विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये पूरा क्लॉज, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, और ये स्टूडेंट को क्वालिफाई करता है। स्टूडेंट के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हमें देता है कि वो स्टूडेंट है जो लेजी है। इसलिए ये हु इज लेजी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट इज द स्टोरी दैट हैज नो मोरल इज यूजलेस। अब ढूंढिए इसमें, वेयर इज द मेन क्लॉज? द स्टोरी इज यूजलेस, दिस इज द मेन क्लॉज। हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के बीच में रखा है। क्यों रखा है? ताकि हम इस एडजेक्टिव क्लॉज से इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करवा सकें। इस सब्जेक्ट के साथ हमने इसलिए इसको इसलिए रखा ताकि ये इसकी विशेषता बता सके और हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में समझ सकें। द स्टोरी, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी? दैट हैज नो मोरल। द स्टोरी हैविंग नो मोरल इज यूजलेस, मीन्स ऑल द स्टोरीज हैव मोरल्स, बट a story or the story that has no moral is useless. This that has no moral, this is an adjective clause in this sentence. Next is the flat that I live in belongs to my friend. जिस फ्लैट में मैं रहता हूं वो फ्लैट मेरे दोस्त का है। हम कह सकते हैं that the flat belongs to my friend is the main clause in this sentence. But that I live in is the subordinate clause in this sentence, and that I live in is an adjective clause. I subject, live verb, subject verb combination. That I live in has no complete sense. It means it is a subject verb combination having not a complete sense. So, and this subject verb combination, this subordinate clause qualifies the noun the flat. किसके बारे में बता रहा है? कौन सा फ्लैट? जिसमें मैं रहता हूं, वो मेरे दोस्त का है। तो यहां दैट आई लिव इन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो इस नाउन सब्जेक्ट फ्लैट को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में उस इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। इस प्रकार से हम एडजेक्टिव क्लॉज को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले क्लॉज के रूप में यूज कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। वेयर इज द मेन क्लॉज? ही इज ऑनेस्ट। हम केवल इतना बोल सकते हैं तो ये मेन क्लॉज, इट हैज ए कंप्लीट सेंस एंड ही इज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। दो ही इज पुअर, he is subject verb combination, but though he is poor has not a complete sense. For its complete sense, it has to or it depends upon this main clause. And what it tells, though he is poor, it is adverb, adverb of contrast. वो poor है लेकिन honest है, फिर भी honest है, तो यहां पे एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट को, इसलिए ये एडवर्ब क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए हे सब्जेक्ट है, इज वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। दो ही इज पुअर, ए सबऑर्डिनेट क्लोज, एंड इट इज टेल्स अस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मेन क्लोज एंड द सबऑर्डिनेट क्लोज, सो इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब क्लोज। सेकंड सेंटेंस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। हम केवल इतना बोल सकते हैं, यू कैन नॉट सक्सीड, it has a complete meaning. It means it is the main clause in this sentence. And where is the subordinate clause? Unless you work hard. आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अभी आपके क्लासरूम में कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया और उसने आते ही कहा unless you work hard, तो इससे आप क्या समझ पाएंगे? Not complete sense. आप पूछेंगे उससे what? But if he says you cannot succeed, this has a complete meaning. Then he says
अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। ये हमारा क्या हुआ? क्लॉज, कंडीशन क्लॉज। यू वर्क, यू सब्जेक्ट है, वर्क हमारा यहां वर्ब है, इसलिए ये एक क्लोज हुआ। और कैसा क्लोज हुआ? एडवर्ब क्लोज हुआ, एडवर्ब ऑफ कंडीशन क्लोज। नेक्स्ट इज ही केम व्हेन इट वाज रेनिंग। ही केम सब्जेक्ट वर्ब प्रिंसिपल क्लोज, व्हेन इट वाज रेनिंग सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज क्यों है? इट सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। कंप्लीट मीनिंग, नॉट कंप्लीट सेंस। सो ही केम व्हेन, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। कब आया वो? व्हेन इट वाज रेनिंग, जब बरसात हो रही थी। दिस इज एन एडवर्ब क्लोज। ये सबऑर्डिनेट क्लोज यहां एडवर्ब ऑफ टाइम की जगह पर काम कर रहा है। नेक्स्ट इज डोंट स्टेप आउट ऑफ द बस until it stops। अगेन स्टेप आउट, डोंट स्टेप आउट। ये यहां पर यू जो है सब्जेक्ट, हिडन सब्जेक्ट है। डोंट स्टेप आउट ऑफ द बस, तब तक बस से नहीं उतरो, मत उतरो जब तक बस रुक ना जाए, यानी कि बस के रुकने पर ही उतरो। तो यहां पर डोंट स्टेप आउट ऑफ द बस इज द मेन क्लोज। until it stops means until the bus stops, सबऑर्डिनेट क्लोज। until टाइम के बारे में बता रहा है, इसलिए टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम, और क्लोज है ये, इसलिए एडवर्ब ऑफ क्लोज, एडवर्ब क्लोज, और यू कैन से एडवर्बियल क्लोज। इस प्रकार से हम नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज को विभिन्न सेंटेंसेस में पहचान सकते हैं, या दिए हुए सेंटेंसेस में अपनी तरफ से यदि हम नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज इंसर्ट कर सकते हैं, उसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, तो हमें नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज की समझ है।